Hello everyone, welcome in Ved Prep Maths Academy. So as we were discussing sequence of real numbers in our last lectures, and in just previous lecture we were discussing limits. And we computed limits by using ordinary ways. Ordinary ways means like by redefining the nth term or by L'Hospital rule. And in just previous lectures we were discussing limit of some special सीक्वेंसेस वी वर डिस्कसिंग. ठीक है, तो स्पेशल लिमिट्स को स्पेशल सीक्वेंसेस की लिमिट को कंप्यूट करने के लिए जो भी मेथड्स थे, जो भी थ्योरम्स थी वो हम लोगों ने जस्ट लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी. ठीक है, तो बेसिकली जस्ट प्रीवियस क्लासेस में हम लोग लिमिट ही डिस्कस कर रहे थे. तो वहाँ पर तो जस्ट हम लोगों ने एग्जाम्पल लिए थे. द थिंग इज इवेल्यूशन ऑफ लिमिट्स कैसे हम लोग कर पाएंगे वो हमने देखा था. अब आज हम लोग लिमिट की ही एक डेफिनेशन देख रहे हैं, मतलब हम लोग मैथमेटिकल टर्म में देख रहे हैं. मैथमेटिकल टर्म में हम लोग लिमिट को डिस्कस करने जा रहे हैं. इनफैक्ट प्योर मैथमेटिकल टर्म में हम लोग लिमिट को डिस्कस करने जा रहे हैं कि लिमिट का मैथमेटिकली क्या मतलब होता है, क्या उसका विजुअलाइजेशन होता है लिमिट का. हाँ, लिमिट का क्या विजुअलाइजेशन होता है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं. तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे इन द topic epsilon and not definition for limit of a sequence of real number. We will discuss epsilon and not definition for limit, where epsilon can be any positive number. We will take epsilon as a small number which lies between 0 to 1. epsilon can be any positive number, but हम जब डिस्कशन लेंगे तो बेटर रहेगा कि epsilon पॉजिटिव रहे, वो मैं बाद में बताऊंगी. ठीक है, बस रिमेंबर epsilon इज अ पॉजिटिव नंबर. यूजुअली वी विल टेक epsilon बिटवीन 0 to 1. ओके, एंड एन नॉट बी ए नेचुरल नंबर, बट एट ए टाइम इट विल बी फिक्स्ड. ये फिक्स नेचुरल नंबर होगा. सो बिफोर स्टार्टिंग द डेफिनेशन ऑफ epsilon एंड नॉट, आई वॉन्ट टू से if you are really liking my videos, then please do not forget to like and comment on my videos, and also subscribe our channel Ved Prep Maths Academy so that you can get a notification of upcoming videos. Okay, so let's start. So here, before the definition of epsilon and not, I want to give you the definition of neighborhood. What is the meaning of neighborhood? Neighborhood of a real number. नेबरहुड ऑफ ए रियल नंबर, हम रियल नंबर के नेबरहुड की बात करें. ठीक है, सो मैंने कंसिडर किया लेट अल्फा इज एनी फिक्स्ड रियल नंबर. इंस्टेड ऑफ अल्फा आई विल टेक हियर लेट ए इज एनी फिक्स्ड रियल नंबर एंड आर इज एनी पॉजिटिव नंबर. आर इज एनी पॉजिटिव नंबर. then the NBD in short of neighborhood. ठीक है, then the neighborhood of point A with radius R known as a radius. Neighborhood of point A with the radius R is denoted by NRA. Neighborhood of point A with the radius R. Clear? And it is nothing but collection of all the real numbers which are satisfying mod of x minus a is less than r. So here a, r, all are your real number, x is also real number. So neighborhood of point A with the radius r is nothing but collection of all the real numbers such that mod of x minus a is strictly less than r. Now I am dealing in the number line, so this mode can be removed. इस mode को कैसे remove करेंगे हम? This inequality can be written as x minus a lies between minus r and plus r. I can add a in this inequality, then I have a minus r, a plus r, means x lies between a minus r to a plus r. X lies between a minus r to a plus r means this neighborhood is collection of all the real numbers such that x lies between a minus r to a plus r. Correct? This set. तो भाई ये जो सेट है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सेट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर सच दैट x लाइज बिटवीन a माइनस आर टू a प्लस आर. दो रियल नंबर्स के बीच में जितने भी रियल नंबर आ रहे हैं, दो फिक्स रियल नंबर्स के बीच में
जितने भी रियल नंबर x आ रहे हैं उन सबका कलेक्शन। अगर नंबर लाइन पे मैं देखती हूँ, ठीक है, अगर ये नंबर अगर आपका a है तो यहाँ पर ये a माइनस आर होगा और यहाँ पर सेम डिस्टेंस पे ये आपका a प्लस आर होगा। r ये आपका ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा r, करेक्ट। r आपका ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, दिस डिस्टेंस विल गिव यू r, करेक्ट। तो ये वाला नंबर a माइनस आर हुआ, ये वाला a प्लस आर हुआ। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आने वाले सभी रियल नंबर का कलेक्शन, वो क्या हो गया, नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए विद द रेडियस आर। तो भाई ये क्या है, इट इज नथिंग बट एन ओपन इंटरवल, दिस इज नथिंग बट एन ओपन इंटरवल। सो किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड मैंने कंसिडर किया विथ रिस्पेक्ट टू एनी रेडियस, सो दैट विल गिव मी एन ओपन इंटरवल a minus r to a plus r. Clear? So the thing is an RA is nothing but an open interval a minus r to a plus r, an open interval. तो सिंपल, किसी भी रियल नंबर का अगर नेबरहुड से अगर आपको मतलब है तो आप क्या दो दोगे, ओपन इंटरवल, जहाँ पर r कोई भी फिक्स नंबर रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा a माइनस आर, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा a प्लस आर ऑफ दिस ओपन इंटरवल, दैट्स ऑल। फॉर एग्जाम्पल सपोज इट a मैंने ले लिया 1 एंड r मैंने ले लिया, क्या ले लिया, 1/2। सो नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट 1 विद द रेडियस हाफ क्या रहेगा, a माइनस आर, a माइनस आर, a माइनस आर विल गिव यू 1/2 एंड a प्लस आर विल गिव यू 3/2। ये रहा नंबर लाइन, हियर योर 1/2, करेक्ट। सॉरी, here is your 1, so here you will have 1/2 and at the same distance you will have 3/2. So all the real number between 1/2 and 3/2 are lies in this neighborhood of 1 with the radius half. Clear? रेडियस को आप कुछ भी ले सकते हो, 1 फिक्स रहेगा बट r कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर, सो रेडियस कैन बी एनी नंबर बट एट ए टाइम इट शुड बी फिक्स्ड। क्लियर? तो 100 बातों की एक बात है, किसी भी रियल नंबर का आपने नेबरहुड लिया तो वो क्या देगा, आपको एक ओपन इंटरवल देगा जिसका फर्स्ट पॉइंट रहेगा a माइनस आर, सेकेंड पॉइंट रहेगा a प्लस आर। फर्स्ट एंड पॉइंट इज दिस एंड सेकेंड एंड पॉइंट इज दिस। ओके, लेट्स मूव टू आवर डेफिनेशन। अच्छा ओके, वन सेक, बिफोर स्टार्टिंग द डेफिनेशन, मैं डेफिनेशन में जो भी बोला जा रहा है उसको मैं एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ आपको, क्योंकि अगर एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया ना तो डेफिनेशन तो आपके माइंड में ऐसे ही बैठ जाएगी। क्लियर है? चलो, तो जो हमारा सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल था वो क्या था, बताओ बताओ कौन सा एग्जाम्पल था? सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल किसे बताया था मैंने, 1/n को। याद रखना इसको, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे आप 1/n एज इट इज दे सकते हो, ठीक है। सो 1/n, नाउ इफ आई टेक एक्सपेंडिंग टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस देन व्हाट आई हैव, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 and many more. Clear? Now locate them on number line. So okay, and limit of this sequence is what, when n tending to infinity then this sequence tends to 0, correct ना? लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस इज 0, मतलब ये सारी टर्म्स किस पर अप्रोच कर रही है, 0 पर अप्रोच कर रही है। तो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म तो क्या है यहाँ पर, 1/2, ये रही इसकी 0, इसकी लिमिट 0। सेकेंड टर्म 1/2, थर्ड टर्म 1/3, फोर्थ टर्म 1/4, फिफ्थ टर्म 1/5, सिक्स्थ टर्म 1/6, 1/7, एट्थ टर्म 1/8 एंड लाइक दैट। तो यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व करते हो, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करते हो इस जीरो के राइट में, इस जीरो के राइट में इधर में इस सीक्वेंस की क्या होती है, इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स लाई कर रही होती है। बताया था ना, जीरो के इधर में सीक्वेंस के टर्म्स के बीच का गैप क्या होगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, मतलब टर्म्स क्या हो रही है, जीरो पर अप्रोच कर रही है। तो ओवरऑल क्या मिल रहा है हमें, टर्म्स जो है इस जीरो के राइट हैंड साइड में सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स आ रही है। तो अगर मैंने इस जीरो का कोई भी नेबरहुड लिया, इस जीरो का कोई भी नेबरहुड लिया, तो वो नेबरहुड क्या रहेगा, ओपन इंटरवल ही रहेगा। वो नेबरहुड क्या रहेगा, एक ओपन इंटरवल ही रहेगा। कितने भी ओपन इंटरवल्स ले लो आप, ठीक है, ये मैं कुछ कुछ ले रही हूँ यहाँ पर, लाइक दैट, ठीक है। तो कोई भी इस जीरो का आप कोई भी नेबरहुड लो, जीरो का आप कोई भी नेबरहुड लो, इस नेबरहुड के राइट पार्ट में क्या हो गया, इस सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स लाई करेगी, एक्सेप्ट फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के
एक्सेप्ट फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के इस जीरो के नेबरहुड में क्या होंगी, सीक्वेंस की इन्फाइनाइटली मैनी टर्म्स लाई करेगी। क्लियर है? तो ये कब हो रहा है, जब सीक्वेंस की लिमिट क्या है, जीरो है। बस, तो जो बात अभी हमने यहाँ पर विजुअलाइजेशन से बताई, सेम वही बात रिपीट हो रही है किस में, एप्सिलॉन एंड नॉट डेफिनेशन में। ठीक है, तो अब फाइनली हम लोग मूव करते हैं एप्सिलॉन एंड नॉट डेफिनेशन पर। एप्सिलॉन एंड नॉट definition for limit of a sequence. ठीक है, okay. And one more thing which I forgot here, limit से मेरा मतलब है finite. I am talking about finite limit here. Epsilon and not definition going to be hold for finite limits. मतलब जो definition अभी मैं यहाँ पे देने जा रही हूँ वो मैं finite limit के लिए बात कर रही हूँ, और अभी जो example भी आया है वो finite limit के केस में आया है, finite। ठीक है, तो पहले मैं finite limit को ही explain कर रही हूँ यहाँ पर। Epsilon and not definition for finite limit। ठीक है, okay. So let xn be a sequence, xn be a given sequence, xn be a given sequence such that limit of this sequence is equal to L where L is finite and unique. No doubt limit अगर मिल रही है तो वो unique तो होगी, बट यहाँ पर मैं finite ले रही हूँ। ठीक है, okay. So xn be a given sequence such that limit of this sequence is L. So this is only possible if and only if कोई भी सीक्वेंस है उसकी लिमिट L मिल रही है, तो दिस इज ओनली पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर n नॉट विच डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन। n नॉट बी ए पॉजिटिव नंबर, इनफैक्ट नेचुरल नंबर विच डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन। ठीक है, सच दैट मोड ऑफ xn माइनस L दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। क्या डेफिनेशन बोला, ये लिमिट हमें मिलेगी, दिस लिमिट इज सेम एज दिस कंडीशन। सो सीक्वेंस लिमिट इज L इफ एंड ओनली फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 you will have a natural number that depends on एप्सिलॉन। जो भी आपने यहाँ पर एप्सिलॉन लिया उस एप्सिलॉन के रेस्पेक्ट में यहाँ पर आपको एक नेचुरल नंबर n नोट मिलेगा, सच दैट मोड ऑफ xn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन एंड दिस gonna be hold for all n greater than equal to n नोट। मीन्स यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये नंबर लाइन, ये सब कुछ क्या रियल नंबर से, तो इसको अगर मैंने ओपन किया तो क्या मिल रहेगा मुझे, बेसिकली xn लाइज बिटवीन L माइनस एप्सिलॉन टू L प्लस एप्सिलॉन वेर योर L इज ए लिमिट, तो इट विल बी ए फिक्स्ड नंबर। ठीक है, you will choose epsilon, तो at a time this also be a fixed, so L minus epsilon and L plus epsilon these are two fixed real numbers। ठीक है, जिनके बीच में xn लाइज कर रहे हैं, कौन से xn, जहाँ पर n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट मीन्स n नोट प्लस 1, n नोट प्लस 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस वाले इन सभी नंबर्स के रिस्पेक्ट में जो सीक्वेंस की टर्म्स रहेगी दैट इज xn नोट प्लस 1, xn नोट प्लस 2 एंड सो मेनी। ठीक है, सो दीज इनफाइनेटली मैनी टर्म्स विल लाइज बिटवीन L माइनस एप्सिलॉन एंड L प्लस एप्सिलॉन and L minus epsilon to L plus epsilon, that means xn belonging to L minus epsilon to L plus epsilon for all n greater than equal to n नोट। तो ये तो इन्फाइनेटली मैनी नंबर्स रहेंगे ना, जो कि n नोट एक फिक्स नंबर से बड़े हैं, n नोट प्लस 1, n नोट प्लस 2 दीज आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस की क्या हो रही है, इन्फाइनेटली मैनी टर्म्स है, जो कि क्या हो रही है, इस ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रही है। और ये ओपन इंटरवल क्या है, दिस ओपन इंटरवल इज नथिंग बट नेबरहुड ऑफ L विद द रेडियस एप्सिलॉन। करेक्ट, सो क्या मिल रहा है हमें, xn बिलोंगिंग टू नेबरहुड ऑफ L विद द रेडियस एप्सिलॉन फॉर ऑल n दोज आर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू n नोट। ये नंबर लाइन है, यहाँ पर आपको L मिल जा रहा है, तो ये आपका L माइनस एप्सिलॉन होगा, ये वाला आपका L प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, तो इस छोटे से नेबरहुड में
ये सारी टर्म्स लाई कर रही है सीक्वेंस की। कौन कौन सी टर्म लाई कर रही है? सीक्वेंस की सारी टर्म्स आ रही है जहाँ पर जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट हो रहा है। x n नोट प्लस 1, x n नोट प्लस 2, x n नोट प्लस 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स इस नेबरहुड में आ रही है। और कुछ टर्म्स, कौन कौन सी टर्म्स? x n नोट माइनस 1, x n नोट माइनस 2 लाइक दैट, x2 x1, ये वाली टर्म्स क्या आ रही है? बाहर जा रही है, आउटसाइड है। समझ में आया? सो द थिंग इज यू कैन से और वी कैन से L is the limit of sequence xn if and only if every neighborhood of limit L contains infinitely many terms of sequence xn। ठीक है? और instead of this language we can say every neighborhood of L excludes only finite number of terms। एक्सक्लूड मतलब नहीं रख रहा है, ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ही तो है, x1 x2 टिल x n नोट माइनस 1, ये फाइनाइट ही है, दे आर फाइनाइट ना, दीज आर फाइनाइट इन नंबर्स। तो ये फाइनाइट नंबर्स को ही क्या कर रहा है? एक्सक्लूड कर रहा है। ठीक है? इसके अलावा सारी टर्म्स को क्या कर रहा है? इंक्लूड कर रहा है। सो वी कैन यूज दिस लैंग्वेज ऑल्सो। L is a limit of sequence xn if and only if every neighborhood of this limit L excludes only finite number of terms of your sequence xn, or you can say contains infinitely many terms of sequence xn। दोनों बातें हो रही, इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स को कंटेन कर रहा है, ये भी बोल सकते हो, या फिर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को एक्सक्लूड कर रहा है, एक्सक्लूडिंग। क्लियर? ठीक है? और सबसे बेस्ट मैंने ये एग्जांपल बता दिया आपको, ये हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो क्लियर डेफिनेशन को फॉलो अप कर रहा है। इनबिल्ट सारे ही सीक्वेंस है जिनकी लिमिट आ रही है, जिनकी लिमिट कोई ना कोई फाइनाइट नंबर है, वो इस एप्सिलॉन एन नॉट डेफिनेशन को फुलफिल करेगी ही। क्लियर? चलो ओके। अब काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा चलो, अभी मैं एक काउंटर एग्जांपल लेती हूँ और फिर उसमें मैं बताती हूँ कि ये एन नोट हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है? हाउ टू फाइंड एन नोट दैट डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन इन नेचुरल नंबर। ठीक है जी। अब वही सबसे हमारा जो बेस्ट एग्जांपल है xn इज इक्वल टू 1/n, वही ले लेते हैं। डेफिनेशन में बोला देयर एग्जिस्ट एन नोट, एक एन नोट एग्जिस्ट करेगा। डेफिनेशन क्या था हमारा? डेफिनेशन इज फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नोट, एटलीस्ट एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट दिस विल बी होल्ड्स ट्रू। क्लियर? एटलीस्ट वन मतलब एटलीस्ट एक एग्जिस्ट करेगा, एक से ज़्यादा भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास सीक्वेंस है एंड आई नो दिस सीक्वेंस टेंडिंग टू 0 एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। आई वॉन्ट टू फाइंड हियर एन नोट जो कि डेफिनेशन को फुलफिल करे। ठीक है? अच्छा, तो जैसे कि एन नोट फाइंड करने एटलीस्ट एक एन नोट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो एन नोट फाइंड करने का कोई फिक्स मेथड नहीं है। ठीक है? बट फिर भी मैं यहाँ पर एक दो एल्गोरिथम आपको बता देती हूँ जिनके थ्रू आप लोग किसी भी सीक्वेंस के लिए एन नोट फाइंड कर सकते हो। ठीक है? जस्ट मतलब पता होना चाहिए हाउ टू फाइंड दिस एन नोट, ये एन नोट कैसे आता है एंड ऑल। सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। ओके, सो हियर what I need to do. Okay, so for a given epsilon greater than 0 we need to find a natural number n naught that depends on epsilon such that what we'll have mod of xn minus l. This should be less than epsilon for all n greater than equal to n naught. ये चाहिए। ठीक है? ओके, तो जो फर्स्ट एल्गोरिथम है वो जस्ट ऐसा है, उसमें आप क्या करोगे एन नोट फाइंड करने के लिए
ये लेके चलना मीन्स टेक एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, और इसको सिंप्लीफाई करना टिल देन यू हैव एन इज ग्रेटर देन सम फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन, एंड दिस विल गिव यू फॉर स्मॉल एप्सिलॉन एफ एट एप्सिलॉन इज लार्जर विल लार्ज। ठीक है, ये ऐसा आपके पास आना चाहिए कि कोई भी स्मॉल एप्सिलॉन के लिए अगर आप एफ एट एप्सिलॉन को अगर कंप्यूट करते हो, ये जो भी फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन आपको मिलेगा, सो उसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आना चाहिए, लार्जर आना चाहिए। दिस शुड बी a larger one. Okay, so what we'll take, we will take here mod of 1 by n minus 0 less than epsilon। ठीक है, ये लेके चलेंगे ना, यही बताया ना फर्स्ट एल्गोरिथम में, इट्स जस्ट ए ट्रिक बेसिकली। हाँ, तो ये लेके चलना, सिंप्लीफाई करना, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू नीड टू टेक n is strictly greater than some function of epsilon, और जो फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन है वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो। फॉर ए स्मॉल एप्सिलॉन यू विल गेट एफ एट एप्सिलॉन बिगर वन और लार्जर वन। इनफैक्ट इट शुड बी वेरी लार्ज नंबर। ओके, चलो तो ये मैंने लिया। सो 1 by n minus 0 it's simply 1 by n mod of 1 by n। now 1 by n what, 1 by n is what, positive number, 1 by n is a positive number, so I can remove modulo, I have this, so this I can write n is greater than 1 by epsilon। यही तक तो सिंप्लीफाई करना था, n is greater than some function of epsilon, करेक्ट। ओके, सो अभी देखो, नाउ इतना हमने कर लिया। इनफैक्ट फिर ये आपको मिल जाएगा, देन चूज योर एन नोट, choose n naught which is just greater than this। that's why in the definition I am saying your n naught depends on epsilon। n naught should depends on epsilon। जो आप epsilon चूज करोगे उसी के रिस्पेक्ट में आपको क्या मिलेगा, n naught मिलेगा। ठीक है, सो चूज n naught is greater than 1 by epsilon। सो ये आपका एन नोट होने वाला है बस। सो मिल गया ना हमें एन नोट, हमें एन नोट ही फाइंड करना था, सच दैट यू इस डेफिनेशन को फुलफिल करें। सो हियर योर एन नोट इज नथिंग बट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 by epsilon। ठीक है, अब वेरीफाई करना है, इसको वेरीफाई करते हैं। चलो ठीक है, हमारे पास है व्हाट वी आर हैविंग हियर 1 by n minus 0 is less than epsilon for all n greater than equal to n naught, and your n naught is greater than 1 by epsilon। verify it, we are verifying it। okay, choose any epsilon। ठीक है, अब रिमेंबर स्मॉल एप्सिलॉन, लार्जर एप्सिलॉन के लिए तो ऑलवेज एप्सिलॉन को अगर आप बहुत बड़ा ले लोगे तो एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन वो तो होल्ड हो ही जाएगा फॉर द लार्जर एप्सिलॉन्स। ठीक है, दैट्स वाई एप्सिलॉन हम स्मॉल कंसिडर करेंगे। इन पर्टिकुलर हमारा एप्सिलॉन है जो 0 से 1 के बीच में ही होना चाहिए। ऑब्वियस ना, अगर एप्सिलॉन का आप बहुत बड़ा नंबर ले लोगे तो ये तो ऑटोमेटिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। ठीक है, दैट्स वाई हमारा एप्सिलॉन जो है वो स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल के लिए हम लोग वेरीफाई किया करेंगे। सो दैट्स वाई आई एम टेकिंग हियर एप्सिलॉन बिटवीन 0 to 1। चलो ओके, सो कोई भी एप्सिलॉन लो 0 से 1 के बीच में, क्या चूज करोगे? let I am taking epsilon is equal to 1 upon 1000। then your n naught will be greater than 1 upon epsilon, means n naught is greater than this, so you can take n naught 1001। so come to this definition, so here you will have 1 by n is less than epsilon is your 1 by 1000, and this should be true for all n greater than equal to n naught is this। ठीक है, अब देख लो ना, इस नंबर से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर लो और उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे सीक्वेंस की टर्म्स को कंप्यूट करो। ठीक है, तो यहाँ पर 1001 के रेस्पेक्ट में सीक्वेंस की टर्म आ रही है, ये लेस देन है। आगे वाली टर्म देखो 1002 लेस देन है। नेक्स्ट टर्म देखो 1003 लेस देन है। सो भाई सारी टर्म्स क्या होगी, लेस देन होगी ना, मतलब इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है।
आप कोई भी एप्सिलॉन ले लो, उस एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से एन नॉट मिल जाएगा, और उस एन नॉट के लिए ये कंडीशन ऑलवेज फुलफिल होगी ही, नो डाउट। क्लियर है? ओके, सो आई एम गिविंग यू an exercise. I am taking xn is equal to n divided by n plus 1, and clearly this tending to 1 as n tending to infinity. So here you will find n naught by using that previous algorithm. I have another algorithm also. So let me take an example. So I am taking here example as, let xn is your sequence whose nth term is given by n square plus 3n plus 5 divided by 2n square plus 5n plus 7, and I want to find here n naught. ठीक है, अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देखो nth टर्म जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है. इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड बट इट्स सम लेंदी टाइप, हाँ इट्स सम कैलकुलेटिव टाइप, है ना. इफ़ यू कंपेयर दिस विथ 1/n, सो नो डाउट उसके कंपैरिजन में तो काफ़ी बड़ी है. ठीक है, तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हुए आपको क्या करना होगा, एन नॉट फाइंड करना होगा. अब उसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे देखते हैं, चलो. सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 we need to find n naught a natural number depending on epsilon, such that we will have xn minus, okay, what is the limit by the way, this sequence converging to what, this converging to 1/2 as n tending to infinity. So here you will have xn minus 1/2 is less than epsilon for all n greater than equal to n naught. So this kind of n naught I need to find. So पहले इसको simplify करते हैं. Let's simplify this. Okay. So xn minus 1/2. In fact, you just take here this. So here I will take, in the second algorithm, I just take mod of xn minus l and then simplify it. And I want to find its upper term. Means this term should be less than by some simple term. Getting my point? इस तरह से. बट इस टर्म का हमें क्या फाइंड करना होगा, अपर टर्म फाइंड करना होगा. अपर टर्म फॉर ऑल एन के लिए वो क्या दे, लार्जर वैल्यू दे एज कंपेयर टू दिस टर्म. So it is our second algorithm basically. So I will take here xn minus 1/2 only. So what is our xn? My xn is here n square plus 3n plus 5 divided by 2n square plus 5n plus 7. So 1/2. ठीक है. Let's simplify it by taking LCM. So after taking LCM तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, what I have 2n square plus 6n plus 10 minus 2n square minus of 5n minus 7 divided by 2n square plus 5n plus 7 and also multiplied by 2. 2n square to 2n square goes cancel out. 6n minus of 5n. So I just have here n, correct. 10 minus 7. So I will have here 3 divided by 2n square plus 5n plus 7. Okay, mod of this. So ये तो हमें जो simplification से मिला. Now what I want to find its upper term. Also it should be some simple term. ठीक है. Okay. Now if I replace numerator by a larger term of this, in the numerator I have n plus 3. So if I replace n plus 3 by 4n, so this will be true for all n, means this term
2n square plus 5n plus 7 will be greater na, this term will be greater for all n, because if you put n equal to 1, here denominator is same, but in the numerator if you put here n equal to 1, you have 4, here 4 means equality holds. ठीक है, okay. If you put n equal to 2, then here you will have 5, but here 8, n equal to 3 6, and here 3 12. So no doubt इस वाला टर्म में क्या है, न्यूमरेटर ग्रेटर है, so ये वाला टर्म ग्रेटर हो गया. Now if I remove something from the denominator, for example 5n plus 7 को अगर मैंने रिमूव किया तो भी क्या हो जाएगी टर्म, तो भी क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म ग्रेटर हो जाएगा. 5n plus 7 that means 2 into 5n plus 7, इसको रिमूव किया तो भी ये टर्म ग्रेटर हो गया, एंड दैट विल बी ट्रू फॉर ऑल n, क्योंकि डिनोमिनेटर में से मैंने एक पॉजिटिव नंबर एडिशन में कुछ पॉजिटिव नंबर ऐड हो रही थी, उस टर्म को अगर रिमूव कर दिया तो ओवरऑल ये टर्म क्या रही, ग्रेटर हो गई ना, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल n. सो अल्टीमेटली हियर 4 to 4 goes cancel out, 1n to 1n cancel out. So ultimately I am having mod of xn minus 1 by 2 is less than what, 1 by n. So no doubt this is what, upper term of this term, and also simple, it's a simple term in n. Okay, now what I want this term, I want this term is less than epsilon, this term is less than epsilon. किन के लिए, for all n those are greater than equal to n naught. So I want to make it less than epsilon, I want to make this term less than epsilon. So mod of xn minus 1 by 2 is less than epsilon if and only if 1 by n is less than epsilon. If your 1 by n is less than epsilon, then automatically this term will be less than epsilon. Clear? Like that na. So this term is less than epsilon. ठीक है, okay. So now मिल गया यहाँ पर टर्म, यहाँ पर वो सिंपल टर्म मिल जा रही है. नाउ इसको मुझे सॉल्व करना होगा. टिल देन आई हैव n इज ग्रेटर देन सम फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन. going to back to first algorithm. Clear? Okay, so simply I can write this as n is greater than 1 by epsilon. So here I can choose n naught strictly greater than 1 by epsilon. So this will implies mod of xn minus 1 by 2 is less than epsilon for all n those are greater than equal to n naught, and n naught is greater than 1 by epsilon. So हमारा n naught ऐसा मिल रहा है यहाँ पर. ठीक है, अब एज ए एक्सरसाइज है, वेरीफाई इट, क्योंकि इट टेक्स सम कैलकुलेशन ना. फॉर एप्सिलॉन कुछ भी लो, उसके रेस्पेक्ट में n naught मिल जाएगा, उस n naught के बाद में कोई भी n लो और उसके रेस्पेक्ट में इसे कंप्यूट करो. दैट डिफरेंस, दैट एब्सोल्यूट वैल्यू मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन. जो भी आप एप्सिलॉन चूज कर रहे हो, इसको आप अपने आप वेरीफाई करना, जैसे कि अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने वेरीफाई किया था. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन की ज़रूरत रहेगी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए. सो डू इट एज एक्सरसाइज. वन मोर थिंग, एज वी डिस्कस इन द डेफिनेशन एप्सिलॉन एंड नॉट डेफिनेशन ऑफ लिमिट. हमने क्या डिस्कस किया था कि जो भी लिमिट है, जैसे कि यहाँ पे लिमिट 1/2 है, तो 1/2 के नेबरहुड में, 1/2 के नेबरहुड में क्या होंगे, सीक्वेंस की इन्फाइनेटली मैनी टर्म लाई करेगी. करेक्ट ना. अच्छा, ओके. अब नेबरहुड यहाँ पर रेडियस क्या है, नेबरहुड विल बी ऑफ रेडियस एप्सिलॉन. करेक्ट. so here your xn lies between 1/2 minus epsilon to 1/2 plus epsilon, and this will be true for all n those are greater than equal to n naught, and your n naught will be greater than 1 by epsilon. Correct. So the thing is, you are having xn belonging to open interval 1/2 minus epsilon to 1/2 plus epsilon. Choose any epsilon. Choose any epsilon here. So according to this epsilon you will have n naught, और इस n naught के बाद में कोई भी n लो और उस n के रेस्पेक्ट में सीक्वेंस की टर्म्स आप देखो, उस n के रेस्पेक्ट में सीक्वेंस की आप टर्म्स देखो, वो सारी टर्म्स क्या हो रही है, इस ओपन इंटरवल में लाई करेगी. दैट मीन्स 1/2 ये लिमिट है, इसका ये नेबरहुड रहेगा कोई भी 1/2 माइनस एप्सिलॉन टू 1/2 प्लस एप्सिलॉन. सीक्वेंस की ये जो सारी टर्म्स है वो इस इंटरवल में लाई कर रही है. दोज आर इन्फाइनेटली मैनी, बिकॉज एप्सिलॉन को आपको कुछ भी लिया, जैसे फॉर एग्जांपल
जैसे कि प्रीवियस केस में हमने लिया था एप्सिलॉन को 1/1000. इफ आई टेक एप्सिलॉन इज दिस, सो एन नोट क्या हो जाएगा, एन नोट विल बी ग्रेटर देन 1000. सो आई कैन टेक एन नोट इज इक्वल टू 1001. ठीक है. सो यू विल हैव एक्स एन बिलोंगिंग टू 1/2 minus 1/1000 to 1/2 plus 1/1000. xn belonging to this open interval and कौन कौन से xn रहेंगे, where n is greater than and equal to n naught which is this. मीन्स कौन कौन सी टर्म्स इसमें लाई करेगी, x 1001, x 1002, x 1003 and so on. They are infinite many in numbers. So that means there are infinitely many terms of this sequence xn which are belonging to this neighborhood. एप्सिलॉन को मैंने ये लिया, ऐसे कोई भी एप्सिलॉन लो, हर एक एप्सिलॉन के लिए आपको एन नोट डिफरेंट मिलते जाएंगे. मतलब यहाँ पर डिफरेंट टर्म्स रहेगी जो कि उस नेबरहुड में लाइक करती जाएगी. बट वो क्या होगी, वो दे आर इनफाइनाइट मैनी. अब यहाँ पर कौन कौन सी टर्म इस नेबरहुड में नहीं आ रही, यहाँ पर x1 to x1000 ये वाली टर्म्स इस नेबरहुड में बिलोंग नहीं कर रही है. इसके अलावा इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स, इनफाइनाइटली ये मैनी टर्म्स इस नेबरहुड में बिलोंग कर रही है. क्लियर ना. तो वो डेफिनेशन हमारी फुलफिल हो रही है. ऐसे ही आप अगर प्रीवियस एग्जांपल की बात करते हो जो कि हमारा 1/n था. ठीक है. सो हियर यू हैव दिस. तो यहाँ पर भी ये क्या हो रहा है, दैट 1/n इट इज योर सीक्वेंस. 1/n लाइज बिटवीन माइनस एप्सिलॉन एंड प्लस एप्सिलॉन, दैट इज 1/n, दैट इज 1/n belonging to open interval minus epsilon to plus epsilon, and this will be true for all n those are greater than equal to n naught and your n naught is greater than 1/epsilon. तो कोई भी एप्सिलॉन लो उसके लिए n naught मिल जाएगा. उस n naught के बाद वाले सीक्वेंस की कोई भी टर्म्स लो तो वो इस एप्सिलॉन नेबरहुड में बिलोंग करेगी. जैसे यहाँ पर एप्सिलॉन को आपने ये ले लिया था, एप्सिलॉन को आपने ये लिया था. ठीक है. सो एप्सिलॉन को आपने 1/1000 लिया था, दैट मीन्स 1/n दीज टर्म बिलोंगिंग टू माइनस ऑफ 1/1000 to 1/1000 एंड दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1001. सो ये सारी सीक्वेंस की टर्म्स 1001, 1002, 1003, 1004 and like that they are infinitely many. So these infinite terms lies in this interval. एप्सिलॉन को आपने कुछ और लिया तो एन नोट कुछ और मिल जाएगा, तो इंटरवल कुछ और मिल जाएगा. बट वही सीक्वेंस की तो इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स ही रहेगी जो कि इस नेबरहुड में लाई कर रही होगी. करेक्ट. केवल फाइनाइटली मैनी टर्म्स ही रहेगी जो कि इस नेबरहुड में लाई नहीं कर रही होगी. इट्स वेरी सिंपल. क्लियर. और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, कौन सा, 1/n. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो हमारा था 1/n. 1/n हमारा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था जो कि एप्सिलॉन एन नॉट डेफिनेशन को विजुलाइज करा रहा था. क्लियर है, बता दिया था मैंने. ओके चलो. तो बेसिकली एन नॉट फाइंड करने के लिए मैंने आप लोगों को 2 एल्गोरिथम बता दिए हैं. ठीक है. 2 एल्गोरिथम बता दिए थे मैंने आप लोगों को. सेकंड एल्गोरिथम यहाँ पर हम लोगों ने बताया था. सेकंड एल्गोरिथम के थ्रू हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था और फर्स्ट एल्गोरिथम के थ्रू हम लोगों ने 1/n को सॉल्व किया था. ठीक है. चलो अब सेकंड एल्गोरिथम पर ही बेस्ड मैं आपको एक एग्जांपल और दे देती हूँ जिसको आप एज एक्सरसाइज सॉल्व करना. आई एम टेकिंग ए सीक्वेंस xn whose nth term is equal to square root of n plus 1 minus square root of n. So here it is clear that your sequence xn will tends to 0 as n tending to infinity. Compute this limit easily. हाँ ठीक है. So here you need to find n naught such that xn tending to 0 as n tending to infinity. Clear. Do it by the second definition. Clear. तो चलो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एप्सिलॉन एन नॉट डेफिनेशन डिस्कस किया है. उसका विजुअलाइजेशन 1/n सीक्वेंस के थ्रू किया था. फिर हमने 2 एग्जांपल लिए थे जहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, एन नोट फाइंड किया था. ठीक है. एन नोट फाइंड किया था और हमने देखा था कि सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स, इस एन नोट के बाद वाले सीक्वेंस की कोई भी टर्म लो, दैट मीन्स वो इनफाइनाइटली मैनी टर्म जो रहेगी
वो एक ओपन इंटरवल में लाई करेगी। ओपन इंटरवल में मतलब लिमिट के नेबरहुड में लाई करेगी। क्लियर है? ओके, सो होप आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर रहा हो। अगर कोई भी डाउट अगर आप लोगों को होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट ऑन माय वीडियो इफ़ यू रियली लाइक माय वीडियो। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में पॉसिबिलिटी हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो, टिल देन, गुड बाय।